हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये वेणुगोपालन साहब का लास्ट लेटर है और उसमें एक ये बार बार फंड की जिक्र करते हैं कि इतना फंड है हमारे पास, इतना सरप्लस है। शायद अब इस चीज़ को जो बैंक पेंशनर्स हैं तरजीह नहीं दे रहे हैं, जब उनको ये पता चल चुका है कि रेगुलेशन 11 और रेगुलेशन 7 दोनों में फंड की जो व्यवस्था है केवल बैंक करेगा, इसलिए पेंशन फंड की बातें करना कोई फ़ायदे वाला नहीं है। और इस पैराग्राफ में इन्होंने यही बात की है। आगे पढ़ता हूँ मैं। सेक्शन 10(7) ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 permits the board of directors of banks to declare a dividend and to retain surplus profit as accumulated reserves in the books of account only after making due provision for superannuation benefit among other establishments expenses. Given that state-run banks had been declaring dividends ranging from 10% to 270% during the past several years and also accumulating the reserve manifold without paying the pension mandated by the pension regulations, bank had been conducting a daylight robbery of the bank pensioners of all along. According to the law enforcement, even if the banks are operating in red and losses, they are bound to pay the statutorily mandated pension to the retired pensioners. काफ़ी बढ़िया बातें कही हैं उन्होंने। The precursor to the pension scheme in the bank is a settlement. अब ये जो सेटलमेंट हुआ था 19/10/1993 में, उसकी बात बता रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा जो एग्रीमेंट था इसके बेस है। एंटर्ड इनटू बिटवीन द इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. Clause 6 of the settlement agreed that dearness relief to pensioners will be granted at such rates as may be determined from time to time in line with the dearness allowance formula in Operation Reserve Bank of India. And Clause 12 agreed that provisions will be made by a scheme to be negotiated and settled between the parties to this settlement by 31 दिसंबर 1993 for applicability, qualifying service, amount of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension। और ये आया यहाँ पर अपडेटिंग, यानी यहाँ पे अपडेटिंग वर्ड था। अदर जनरल कंडीशंस एंड ऑन द लाइन्स एज आर इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लॉज 6 and 12 ऑफ द सेटलमेंट आर मटेरियल फॉर द केस and the IVA shall be exposed for suppressing them instead। और यहाँ 6 और 12 जो क्लॉज हैं वो क्लियर कट बताते हैं कि सेटलमेंट में पेंशन के लिए काफ़ी बड़ी गुंजाइश है, लेकिन IVA इस चीज़ को दबा रहा है। Recently, as per the directions of the Honorable Supreme Court of India, Ministry of Finance sanctioned pension on the basis of this settlement dated 29/10/1993 with retrospective effect from 1/11/1993 in the regional rural banks sponsored by nationalized commercial banks। उनका लेटर ये 8/4/2024 को RRB 8/3/24 whereby they admitted the fact that the pension settlement dated 1993 of the bank is very much valid। ये बता दिया उन्होंने। उसके बाद में इन्होंने फर्दर द लेटर ऑफ 17/12/1993 फ्रॉम IVA टू लेट श्री R.N. गौडबोला, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन IWOC, confirmed that the pension scheme formulated for the PNB is in line with the central government scheme and also the introduced in RBI लाइन 90 है। अब इनमें सारा जो भी इन्हें बताया है कि बता रहे हैं कि हमारे जो पेंशन रूल्स बने हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के और RBI के अनुसार बने हुए हैं। इट इज़ प्रीरोगेटिव ऑफ द काउंसिल्स टू डिफेंड द SLP नंबर 5561/2016 as sought by the respondent, but probity, if anything is left, calls for helping the court to reach a decision without justice gravity। अब इन्हें सारी बातें बता करके जितनी बातें बता दी हैं, अब इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। ये लेटर है आपके सामने
और मेन बातें पीछे हो गई हैं, और जो बात पीछे हुई हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास काफ़ी मतलब मजबूत वो है, और इस आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये सारी जितनी बातें आती हैं पूरी की पूरी यहाँ पर इनके जिक्र कर रहे हैं। ये द एबव इनपुट इन द मैटर आर प्लेस बिफोर यू। अब यहाँ ये सॉलिसिटर जनरल साहब से कह रहे हैं कि जो भी बात मैंने बताई है हम आपके सामने रख रहे हैं, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ द नेशन, सो एज टू एक्सप्लेन थिंग्स इन द राइट परस्पेक्टिव सो दैट जस्टिस इज नॉट डिफर। और कह रहे हैं कि आपके सामने इसलिए रखी जा रही हैं कि चीज़ें जो हैं वो परस्पेक्ट सही बातें इस प्रकार है, ऐसा नहीं हो कि आप चीज़ों को गलत तरीके से कहें और अन्याय हो जाए, क्योंकि अन्याय नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है, समझे। तो सॉलिसिटर जनरल को पहले ने अवगत करा दिया है, जैसे अफवाहें उड़ रही थी कि पीएनबी का ओर से सॉलिसिटर जनरल साहब केस लड़ेंगे, तो उन्होंने अपना केस भी बता दिया, और हमने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो आर्टिकल 21 का मुद्दा इसमें है, तो इसमें भारत सरकार का वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं लड़ सकते हैं। अब इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।